Welcome back once again. We were doing the chapter Physical Features of India. And I had summarized the chapter along with the notes. Right now, I'm moving along with NCERT. You can also open your book, jot down the main points that would help you out to uh, enable you to learn what kind of questions you can get in this chapter. Let us begin. In the previous class, you had already learned that India is having varied landforms. Now, the very first question we normally get is ki, why India is called as a subcontinent and why not a continent? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉन्टिनेंट आपका जो है डेफिनेशन देता है विच हैज वेरियस लैंड फॉर्म्स, like we have the plain, we have the terrain, we have all kinds of desert, plateau, island. We display everything, but yet we are part of what we call as a large land mass called Gondwana land. मतलब कई बार तो बच्चे मजाक भी करते थे कि मैम अगर गोंडवाना लैंड टूटा नहीं होता तो मे बी वी वर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो यस, if we look on the map of the world, the extreme southern side, Antarctica, South America, South Africa, Australia, some of the other dispersed islands, India, ये पूरा एक बड़ा मास था. मतलब एक ऊपर की तरफ पनगिया, नीचे एक तरफ आपका गोंडवाना. बट ड्यू टू द ओशनिक मूवमेंट्स, this land mass जो है it broke into pieces and drifted away. तैरते हुए ये चले गए. One of the part which joined America was Southern America. The next is South America, South Africa. Ours is Africa, and ours is India, which drifted and collided with Asia. The land of India displays great physical variation. Geologically, ये one marker question है आपका. The peninsular plateau consists one of the ancient landmass on the earth's surface. Actual में अगर हम गोंडवाना land का volcanic eruption देखते हैं तो this is the actual area. It is supposed to be one of the most stable land blocks. ये पेपर में आया हुआ. The Himalayas and North Plains are the most recent landforms because when the Himalayas formed, उनके sediment की वजह से आपके rivers के form होने की वजह से आपके plains form हुए. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valley, and fast flowing rivers. And it is also called as the young fold mountain. हम लोग हिमालयास को young fold mountains भी कहते हैं. This is because it was formed later on. जब अर्थ इवॉल्व हुआ उसके कई सालों बाद जो है आपका हिमालय फॉर्म हुआ था. इसीलिए हम उसको यंग, बिकॉज इट इज फोल्डेड, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज दैट. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. ये अभी हम जब प्लेटू रीजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर से मिलेगा. दिस इज आपका जो है इस वाले में
assertion and reason वाला जो question है, this comes कि why it is मतलब कि stable and why this is, तो ये दोनों आपका relate होकर आता है. Now what are the major physiographical, मतलब आप अगर हम मैप को देखते हैं, if we look at the map of India, so what is the physiography? तो जो ऊपर है that is आपका Himalayan mountains, then northern plains, the peninsular plateau, Indian desert, coastal plains, and islands. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the north borders of India. In fact, आपको पता है इंडिया मतलब जो हिमालयास है, इनकी वजह से जो एशिया के अंदर इतनी सर्दी पड़ती है, इंडिया के अंदर इतनी सर्दी नहीं पड़ती है. Yes, we have the winter season, but not the very extreme. But this is because of Himalayas कि हम लोगों को जो है वो मतलब कि it protects us. These mountain ranges run in a west, यानी कि आपका इधर से अगर हम देखते हैं तो this will be called as the west, and west to east में भी आपका जाता है, and it also ऐसे अगर हम देखते हैं तो it also goes in the vertical way which we call as longitude. Indus to Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest, मतलब बड़े बड़े आपके बिल्कुल ऊंचे, one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc. अगर आप देखते हो, it forms in this way. Which covers a distance of about 2400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers. अगर आप यहाँ पर देखो तो ये ज्यादा है, and if you look into the इधर वाले region में देखो तो आपका width आपका कम रहता है. The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. आपके पेपर में दोनों आता है, longitudinal as well as latitudinal. A number of valley lies between these ranges. The northernmost range is called as Great Himalaya or Himadri. It is the most continuous range. मतलब इसमें बीच में अगर हम पहाड़ को देखते हैं तो they move in this manner. They are not cut. And the highest is 6,000 meter peak. It contains all prominent Himalayan peaks. ये आपके मैप का क्वेश्चन आता है जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है all the ranges. आपके जो ranges हैं, this will be coming in your paper. K2, which is one of the highest one, that is Karakoram range आपका. Then you can see this, ये वाले जो ranges हैं, Zaskar, Shivalik range, Karakoram, these are the ranges. इस पेपर में भी आता है. और कराकोरम रेंज होता है आपका, जैसे ये चल रहा है दिस रेंज, और इसमें जो हाईएस्ट पीक है उसको हम K2 बोलते हैं. दिस इज अ 1 marker question as well as also the map question. The folds of Great Himalayas are asymmetric in nature. The core of this is composed of granite. It is perennially, मतलब all time it is snow bound, and a number of glaciers इसमें से आपके आते हैं. The range lying to the south, मतलब हिमाद्री के नीचे जो आता है, that is आपका हिमाचल और lesser Himalayas. The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rock, दबे हुए और altered rock. और इनकी हाइट होती है अराउंड 37 to 4500 meters और विड्थ में 50 kilometers. While the Pir Panjal forms the longest and important range, Dhauladhar and Mahabharat range are also prominent one. Again, these are all the one which may be there in the 1 marker question. This range consists of famous valley of Kashmir, Kangra, Kullu, और जितने भी हमारे मेजर आपके जो हिल स्टेशंस हैं वो आपको यहाँ पे पाए जाते हैं. सो ऑन द लॉन्गिट्यूडनल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हिमाद्री, देन आपका हिमाचल.
The outermost range of Himalaya is called as Shivalik. नीचे की तरफ. They extend over a width of 10 to 50 kilometers and have an altitude of around 1100 meters. इनकी जो height है. These are unconsolidated sediments जो आपके हिमालय से जब नीचे पानी आता है उसके साथ जो सेडिमेंट है उनसे बना हुआ है. They are covered with thick gravel and alluvium. That is why जब ये नीचे आते हैं तो आपका alluvium फॉर्म होता है जिसकी वजह से प्लेन्स आपके फॉर्म होते हैं. The longitudinal valley lying between lesser Himalaya and Shivalik are known as dunes. देहरादून, कोतली दून एंड पतली दून are some of the दून आपके जो है. These are the name for the gravel की वजह से इसका नाम दून पड़ा है. This is the longitudinal division. पेपर में दोनों आया हुआ है, लैटिट्यूडनल भी लॉन्गिट्यूडनल भी, और दोनों साथ में लिखने के लिए भी. Besides the longitudinal, the Himalayas are also divided on the basis of west to east. इनको हम latitudinal भी बोल सकते हैं. These divisions have been demarcated by, मतलब जैसे ये तो आपके हाइट से थे, लेकिन इनको हमने किया है जहां बीच में रिवर कट जाता है उस तरफ को एक रेंज, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा हम बोलते हैं. For example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj is traditionally called Punjab Himalaya, but it is also known as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east. The part lying between Satluj and Kali is Kumaon. The Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalaya, and part lying between Tista and Dihang is known as Assam Himalayas. यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके बीच में रिवर्स आ जाते हैं. तो जहां जहां आपका रिवर कट के आ जाता है उसको आपका जो है इधर से हिमाचल कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, फिर ये नेपाल वाला पोर्शन हमारा नहीं है तो ये वाला जो राइट साइड में आ जाएगा दैट बिकम्स द असम हिमालय. एंड दिस वन हैज बीन क्वेश्चन इन द पेपर ऑल्सो. There are regional names also in these broad categories. इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of Himalaya beyond the Dihang Gorge. Gorge आपका होता है when there is a मतलब कि river in between ऐसे flow होता है, इसको हम gorge बोलते हैं. और जो आपका ब्रह्मपुत्रा है वो इंडिया के अंदर ऐसे ही एंटर करता है. They are known as Purvanchal and or the eastern hills. These hills running through northeastern states are mostly of strong sandstone, sedimentary, covered with dense forest. They mostly run as parallel range and valley. It comprises the Patkai, the Naga, and the Manipur and Mizo. इसी के नाम पर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये वाले जो नेम है वो. So on the basis of longitude, we have 3. On the basis of from west to east, अगर हम देखते हैं तो we have the Punjab Himalayas, the Kumaon, Nepal and Assam. और एक्सट्रीम आपका ब्रह्मपुत्रा के जो इस तरफ आता है ईस्टर्न साइड, they are called as a Purvanchal. These are also the map questions. Now जहां से आपके ये रिवर्स आते हैं, like जैसे हम ये बनाते हैं, इट्स जस्ट तो व्हेन द रिवर्स कम ओवर तो दे ब्रिंग द सेडिमेंट्स एंड ये सेडिमेंट्स आपके जो है डिपॉजिट होते जाते हैं. एंड दिस वे हमारा जो इंडिया का जो नीचे पोर्शन है द ओरिजिनल, उसके ऊपर मिट्टी डल के जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन बन गया. एंड नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आपके जो मिट्टी है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. सो वी नेम इट अकॉर्डिंगली. जैसे यहाँ भाबर, यहाँ पर आपका तेराई, यहाँ पर हम उसको अलूवियल बोलते हैं. जिसमें जो रिवर के एकदम पास पास में होते हैं दे आर खदर, एंड थोड़ा फार अवे जैसे जैसे वो उड़ के मतलब और दूर चले जाते हैं उनको भाबर. The northern plain has been formed by the interplay of 3 major river systems, Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus से आपका
पंजाब वाला एरिया, गंगा से आपका यूपी बिहार वाला एरिया, आपका जो असम वाला जो एरिया है वो आपका ब्रह्मपुत्रा से बना है. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvial in a vast basin, मतलब बिल्कुल वैली पर at the foothill, form the fertile plain, जो कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, which is 2400 kilometer long and 320 kilometers broad. With a rich soil combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally productive part. इनको हम लोग जो है ग्रेन बैंक भी बोलते हैं, मतलब इंडिया का वो एक ग्रेनरी भी है. मेजर आपके जितने भी क्रॉप्स हैं वो यही आपके आते हैं. इन नेक्स्ट मतलब कि 10th क्लास में आपका एग्रीकल्चर चैप्टर है, इन दैट यू वुड बी डूइंग दिस. द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नीचे आते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डेपोजिशनल, मतलब अलूवियम को डेपोजिट कर देते हैं ऑन द, अगर हम देखते हैं इफ इन द रियल सेंस अगर हम देखें तो जहां आपका ये मतलब कि प्लाटू रीजन खत्म होता है, ये डेपोजिट हो गए थे. तो डेपोजिट होकर जहां हम लोग अभी रहते हैं, ऑल इट्स नॉर्दर्न प्लेन्स, so they are deposited in the lower flows. Due to gentle slope, the velocity of river decreases, which results in formation of riverine island. मतलब कुछ जगहों पर जहां पर नीचे की तरफ आते हैं, मतलब when it comes on the, यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो पानी का जो बहाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड इज द land which is covered by water on all sides. नॉर्मली हम लोग आइलैंड जो है वो सी के लिए लेते हैं, लेकिन when the island is formed due to rivers, मतलब रिवर चारों तरफ है और बीच में लैंड है, तो उसको हम लोग जो है रिवराइन आइलैंड बोलते हैं. एंड इन इंडिया, इन वेस्ट बंगाल, हमारा सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजली, which is very close to Kolkata के मतलब कि उस तरफ आता है. And I think for crossing one of the very famous pilgrimage, we have to go to Majuli Island. Majuli in the Himalayan river is the largest inhabited riverine island in the world. The river in the lower course split into numerous channels. जैसे जैसे ये नीचे उतरते हैं तो इनके ये ऐसे चैनल्स बन जाते हैं अलग अलग से, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं. मतलब होता वो यही एक रिवर है, लेकिन जैसे जैसे वो निकल के अलग अलग जगहों पे जाना शुरू कर देता है तो हम उनको उसका डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं. मतलब ये गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये यमुना का डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके नाम आ जाते हैं. The northern plain is broadly formed into 3 sections. The western part of northern plain is referred as Punjab plains, जो कि इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे बना. बेसिकली ये पाकिस्तान में है. हमारे यहाँ पे कुछ आपके हैं, और कौन कौन से रिवर्स हैं, द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज. इफ यू सी दे आर 5. इसीलिए इन रिवर से जो बना है इनको हम पंज आब बोलते हैं. 2 आब का मतलब होता है, 2 मतलब 2 और आब इज वाटर, 2 आब. पंजाब यानी कि 5 रिवर के से मिक्सचर होकर, तो पंजाब. द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम घाघर एंड तीस्ता रिवर ऊपर, एंड ये हमारा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल थोड़ा सा, पर्टिकुलरली असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन. ये सारा आपका अलुवियल है. इन द नेक्स्ट ईयर यू हैव द फर्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर है. The northern plains are generally described as flat land with no variation, मतलब इसमें कहीं आपको हिल विल ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं. They are plains. According to the variation of relief feature, northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountain, deposit pebbles in a narrow belt about 8 to 16, lying parallel to slopes of Shivalik. और इस एरिया को हम कहते हैं भाबर बेल्ट. मतलब यहाँ पानी जो है नीचे छुप जाता है और पेबल्स आपके जो है ऊपर दिखाई देते. फिर थोड़ा नीचे साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, और वहां आपका वेट
एकदम गीला स्वैम्पी कीचड़ नुमा मार्शी रीजन बनता है, जिनको हम तेराई बोलते हैं, जहां आपको सबसे ज्यादा जंगली जानवर आपको मिलते हैं. द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. धुंधुआ नेशनल पार्क. थर्ड आपका जैसे नीचे उतरता, थर्ड आपका आता है, दैट इज आपका ओल्डर अलूवियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका इस ईयर में भी है एंड नेक्स्ट ईयर भी. डिफरेंशिएट बिटवीन भाबर एंड खदर. 3 मार्कर क्वेश्चन है ये. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज ओल्डर अलूवियम. It lies above the floodplain of rivers and presents a terrace-like feature. जो आपका ये वाला जो आएगा ना, जो ऐसे टेरेस से, वो आपका ओल्डर अलूवियम होता है. This part is called as bhangar. The soil contains calcareous deposits. Normally, it is unfit for agriculture. Locally known as kankad. The new younger deposit of floodplains are called khadar. क्योंकि ये पानी बार बार आता रहता है तो मिट्टी रिन्यू होती है. इट इज रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल एंड आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. So there is a 3 marker question. Differentiate between bhangar and khadar. Then ये तो रहा हमारा प्लेन्स. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, it was the what you call as Himalaya. Then हम लोगों ने पढ़ा plains. Now we move towards the peninsular plateau. In this, you will be having differentiate between western and eastern Ghats. And then there are 1 marker questions आपके आते हैं. और आपके मैप में जो आपके रेंजेस हैं, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, उसको मार्क करने के लिए आता है. द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड. आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आएगा. इसके फीचर्स आपको दे दिए जाएंगे एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई ये कौन सा फिजियोग्राफिक फीचर है. इट इज composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to breaking and drifting of the Gondwana land. जो गोंडवाना लैंड टूटा था, और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. दिस प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज. ज्यादा डीप नहीं. दिस कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन. ऊपर आपका सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. सेंट्रल हाईलैंड आपका बीच में, जो आपका मध्य प्रदेश वाला जो ईज है वो है. द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू lying to the north of Narmada is covering major area of Malwa is called as Central Highlands. The Vindhyan range is bounded by Satpura, मतलब नीचे सबसे ऊपर अरावली, northwest, फिर विंध्या, फिर सतपुरा. इसको I had, last year as I told, I had 3 students and their names used to start with A, V and S. So I had given them this synonym AVS, Aditya, Vaibhav and मतलब की सांवी. तो AVS, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा. मतलब जब आप मार्क करते हो ऑन द मैप. द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट. मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इफ वी लुक इनटू दिस मैप, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका. इफ यू लुक इनटू दिस मैप, यहाँ पर इफ यू सी, दिस इज द, ये वाला जो एरिया है, ये अरावली, ये आपका एकदम राजस्थान का बॉर्डर बनाता है. फिर इनके बीच में ये वाला जो है, दिस इज आपका मालवा प्लेटू या सेंट्रल हाईलैंड. और जो नीचे की तरफ है, ये आपका विंध्या रेंज और सतपुरा, जहां से कई आपके जो मतलब पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं. और इनका जो एक्सटेंशन है यहाँ पर बुंदेलखंड की तरफ, दिस इज आपका छोटा नागपुर. ये वाला जो एरिया, इनको हम छोटा नागपुर कहते हैं, जो बुंदेलखंड की तरफ आता है. और ये जो नीचे की तरफ है, दिस वन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेक्कन प्लेटू, जो कि आपका इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल. तो ये वाला जो एरिया है,
This is what we call as the Malwa Plateau. The further westward, rocky deserts of Rajasthan, the flow of rivers draining the region, namely the Chambal, Sindh, Betwa, and Kher, is from southwest to northeast, thus indicating slope. The central highlands are wider in west. ऊपर की तरफ काफी wide होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं छोटा आता है. The eastward extension of this plateau is locally called as बुंदेलखंड और बागेलखंड. जो आपका छोटा नागपुर की तरफ आता है उसको हम कहते हैं बुंदेलखंड. The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by Damodar River. The Deccan Plateau is a triangular. मतलब अब ये नहीं है कि आप सोचो कि triangular means it is in this manner. It is not like that. Basically, अगर आप इसके मतलब कि उसको देखो तो it will look like this somewhere. So it is said that it is triangular और ये पेपर में भी आया हुआ है. It lies south of the river नर्मदा. ये आपका सतपुरा रेंज इसमें नर्मदा ओरिजिनेट होता है उसके नीचे की तरफ. The Satpura range flanks its broad base in the north, while Mahavir, Kaimur and Michael range. Michael आपका आता है छत्तीसगढ़, वहां पर आपका eastern extension. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes generally eastward. An extension is also visible in northeast, जिनको हम मेघालय, करबी, एंगलोंग प्लेटू, नॉर्दर्न कच्चर हिल्स भी कहते हैं, जो छोटा नागपुर से अलग हो गया है. और जो 3 prominent hills, again a question in the गारो, खासी एंड जैंतिया आपका इसी प्लेटू रीजन के अंदर आता है. यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए ये इसी प्लेटू रीजन का हिस्सा है. नाउ ये तो आपका था पेनिनसुलर प्लेटू. As I said, peninsular plateau look somewhere. तो यहां से हमारा कोस्ट आता है. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड एज घाट्स. और वेस्ट की तरफ वाले को हम वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट की तरफ को हम ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं. द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है. Differentiate between the western and eastern ghats. It marks the western eastern edges of Deccan Plateau. West lies to the parallel of western coast. They are continuous, can be passed through passes. Passes मतलब ऊपर चढ़ के नीचे उतर के आपकी जो है माउंटेन की कटाई होती है, बट दे आर नॉट, बीच में आपका माउंटेन काटा नहीं हुआ है. The western ghats are higher than eastern ghats. They have an average of around 16 meters. ईस्ट में आपका 600. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी आपका उड़ीसा टू नीलगिरीज आपका तमिलनाडु. मतलब वहां से यहां तक के बीच का आपका जो एरिया है उसको हम ये वाला एरिया, दिस इज वेयर यू से ईस्टर्न घाट्स. और वेस्टर्न आपका यहां से यहां तक आपका जो है ये. और इसके अंदर आपका सबसे ऊंचा महेंद्रगिरी. और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इट इज अन्नईमुदी या फिर दोदा बेट्टा. दिस इज द हाईएस्ट पीक. आपके अगर आप लोग कोडाई कनाल या फिर ऊटी गए हो या ऊटी के बारे में सुना हो तो यू विल फाइंड ऑल दीज आर हियर. The eastern ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers which go into Bay of Bengal. The western ghats cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along western slopes of Ghats. मतलब ये बारिश जो है इनको orographic rain बोलते हैं due to facing of the clouds. The western Ghats are also known by different local names. The height increases from north to south. ऐसे. The highest mountain is paper का बड़ा ही, you can say short question from this particular 1 marker is Annaimudi and Doda Betta.
अगर आप लोग ऊटी गए हो तो ये वहां पर है दोदा बेट्टा, इट्स वेरी फेमस. महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट इन ईस्टर्न. Chevroy Hills and Javadi Hills are located to the southeast of Eastern Ghats. You can see Udagamandalam, normally known as Ooty and Kodaikanal. It's one of the very prominent hill stations in southern India. One of the distinct features of Peninsular Plateau is a black soil. मतलब यहाँ पर जो है, बिकॉज वॉल्केनिक रॉक है, इसीलिए वहां पर जो सॉइल है ना वो ब्लैक कलर का होता है. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. और इसीलिए हम इसको रेगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. द रॉक्स आर इग्नियस. These rocks have denuded, मतलब टूटते गए हैं, and they have formed into black soil, which is very important for cotton. इसीलिए हम इसको black cotton soil या फिर हम इसको regular soil भी बोलते हैं. This is all in your first chapter of class 10. Aravalli Hills lie on the western and northwest margins of Peninsular Plateau. और आपका जो दिल्ली है वो आपका अरावली हिल्स के अंदर आता है. दिस इज अगेन वन क्वेश्चन ऑफ द, मतलब दिल्ली किस रेंज में आता है. आप में से कोई अगर दिस हाउस खास वगैरह गया हो तो जो हाउस खास वाला जो पूरा एरिया है ये पूरा आपका अरावली हिल्स का एरिया है. तो दिस कम्स अंडर दिस एरिया. द वेरी फेमस आपका उदयपुर, देन आपका माउंट आबू, ये आपके अरावली जो हिल्स है वहां पर आते हैं. वेरी फेमस माउंट आबू. दिस कम्स अंडर द अरावली रेंज. नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट मार्जिन ऑफ अरावली. अरावली के ऊपर की तरफ. एक्चुअल में वहां पर आपके जो है रेन शैडो है, मतलब वहां बारिश नहीं होती है या होती है तो कम होती है. जो आपका विंड सिस्टम है इंडिया का, आई थिंक द चैप्टर इज राइट नाउ ओमिटेड क्लाइमेट वाला. जो विंड सिस्टम है उसकी वजह से जो क्लाउड्स होते हैं रेन बियरिंग, दे डोंट एक्चुअली मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. एंड इसीलिए वहां पर ईदर इट इज लेस रेनफॉल, स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल. तो वो जो एरिया वो आपका सैंडी है. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. In fact, कुछ जगहों पर तो 40 mm होता है. मतलब this is the way हम rain को measure करते हैं. What happens is मतलब कि जो डिपार्टमेंट, the meteorological departments होते हैं वो क्या करते हैं, they have the measuring मतलब कि कप, और वो लोग रखते हैं एक घंटे में कितनी बारिश हुई, and then उसको ओवर अ पीरियड दे मेजर इट एंड दे फाइंड कि कितनी बारिश होती है. इट हैज एरिड गर्म क्लाइमेट एंड वेजिटेशन नेचुरल है कि नहीं होता. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, सून दे आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड. तो वहां पर इतना पानी नहीं होता है कि दे कैन फॉर्म इनटू अ प्रॉपर रिवर एंड मूव टू द सी. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर जो आपका अपीयर होता है when it is, मतलब खूब बारिश होती है. बार्चन होते हैं आपके बड़े बड़े क्रीजन शेप ड्यून्स, मिट्टी के जो पहाड़ जिस कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर लॉन्गिट्यूडनल. मतलब ऐसे एक होता है ऐसे और दूसरा होता है ऐसे नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. अगर आप मतलब कि जैसलमेर जाओगे तो आपको ऐसे वाले जो बार्चन्स हैं वो मिलेंगे. एंड यू ऑल्सो फाइंड रेयर द लिजार्ड. यहाँ पर आपको रेयर लिजार्ड मिलता है. कैमल आपका जो है वो यहाँ पर चलता है सिंस मतलब कि बाकी जो एनिमल्स है वो नहीं जा सकते. एंड यू कैन फाइंड द लिजार्ड विच आर एज बिग एज योर बेडरूम. आपके रूम जितने बड़े होते. That's the desert lizards. Next is the coastal plain. अब हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा on the map of India we have studied this what you call as Himalaya. फिर हम लोगों ने पढ़ा ये पूरा जो northern plains.
फिर ये हमारा जो दिस एरिया विच कंप्राइजेस ऑफ व्हाट यू कॉल सेंट्रल हाईलैंड, और ये जो नीचे वाला है जो सतपुरा रेंज के नीचे आ रहा डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के इधर आपका ईस्टर्न घाट, इधर आपका वेस्ट। अब ये जो छोटी बीच की जगह है, दे आर ऑल्सो देयर द कोस्टल प्लेन्स, आपका कोस्ट। इफ यू सी, आपके पेपर का क्वेश्चन है दिस, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये जो ऊपर यहाँ गोवा तक आता, दैट्स कोंकण। फिर अगर हम देखें तो दिस इज द कर्नाटका एरिया, तो यहाँ कन्नड़ प्लेन, एंड नीचे आपका जो केरला को कवर करता है वो मालाबार। मालाबार इज अ वेरी फेमस एरिया, एंड मालाबार परांठास आर वेरी फेमस इन केरला। on the eastern side you have the northern Sircar, और ये वाला जो एरिया आपका आता है, this is called as Coromandel Coast. The peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips जो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं. The western coast sandwiched between western Ghats and Arabian, वो जो coastal area is a narrow plain, और वहां आपके 3 sections हैं. One of the very important question, very important. The northernmost is called as Konkan, Mumbai, Goa. The central is Kannad, and while the southern is मालाबार. इसमें हमेशा पेपर में ना क्वेश्चन ये आता है कि कन्नड़ के राइट में क्या है, सॉरी साउथ में क्या है, और कन्नड़ के नॉर्थ में क्या है. तो नॉर्थ इज आपका ऊपर की तरफ, मतलब कि कोंकण, और कन्नड़ के नीचे आपका मालाबार. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred as Northern Sircar, and in the southern, it is Coromandel. Large rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive delta. Now, delta आपका जो है, it is a land, जब आपका सी निकल के जाता है तो ऐसे फॉर्म होता है. तो यहाँ पर आपके जो है महानदी ने भी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, सबने फॉर्म किया हुआ है. एंड यहाँ सबसे जो प्रोमिनेंट है, दैट इज द चिलिका लेक विच लाइज इन ओडिशा. इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, एंड इट लाइज इन ओडिशा, द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. Last but not the least is the island groups. As अभी मैंने ऊपर आपको बताया, a land covered by water on 3 sides, it is called as peninsula. On 4 sides, it is called as island. But when it is formed by river, it would be called as riverine island. Now the island groups. In India, we have 2 island groups. मतलब main जो आपके हैं, locate the Lakshadweep Islands lying close to Malabar coast of Kerala. They are having the coral polyps. आपके वहां पर जो हमारे इंडिया का जो मोती का पूरा इंडस्ट्री है. Earlier they were known as लक्षद्वीप, मतलब इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीप बोलते थे, लेकिन अब उनको हमने जॉइंटली लक्षद्वीप आइलैंड बोला. अराउंड 32 स्क्वायर फुट. एंड इसका जो कैपिटल है वो है कावारट्टी, which is one of the very famous. And then actually यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं. अभी recently due to certain problems with Maldives and all, लक्षद्वीप को promote करना शुरू किया. It is very beautiful. I haven't gone, but I've मतलब heard. And very less people live over. The Pitti Island, which is in uninhabited, मतलब वहाँ लोग नहीं रहते हैं. It has a bird sanctuary. ये आपका 1-1 मार्कर है. Corals, as I said, are the microscopic organs जिनको हम लोग मोती बनाने में यूज करते हैं. In our Hindu mythology, we call that स्वाति नक्षत्र में जब बारिश, मतलब की बूंदे जो है वो उसमें पड़ती हैं चीपी के अंदर, तो वो फॉर्म होती है. बट इन द अदर इट इज अ केमिकल फॉर्मुलेशन जो होता है. और इंडिया के अंदर आपका कोरल पॉलिप्स बेसिकली आपका लक्षद्वीप है. वैसे द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका कोरल रीफ का सबसे बड़ा मतलब की एग्जाम्पल है. नाउ यू सी द elongated chain of islands on the Bay of Bengal. आप वहां पर अगर हम देखते हैं, if we look on the map, you can find this is आपका लक्षद्वीप जो छोटे छोटे से है,
एंड दिस इज आपका elongated, लंबा। नॉर्थ की तरफ आपका अंडमान, नीचे की तरफ आपका निकोबार। और इसी का एक पोर्शन आपका इंदिरा पॉइंट हैड सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द सुनामी, बट इट हैज नाउ अगेन इमर्ज्ड। One of the most popular tourist destination of India. They are bigger in size and more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into two broad categories: the Andaman in the north and Nicobar in the south. It is believed that these islands are elevated portion of submarine mountain. नीचे जो मतलब वो है mountain है, ये उनका हिस्सा है। They are of great strategic import क्योंकि हमारे यहाँ rubber trees है। It's मतलब कि यहाँ पे flora and fauna काफी है, and they are one of the prominent tourism place. एंड इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ इक्वेटेरियल क्लाइमेट रहता है, फॉरेस्ट रहता है, और रबर फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। And of course, we also have the very famous, I had already told, the cellular jail, which is there in Andaman and Nicobar. इसको हम काला पानी भी बोलते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। एंड जो वॉल्केनो है, इट इज देयर ऑन द बैरन आइलैंड, जो आपका इंडिया का मतलब वॉल्केनो, वो यहाँ पे आ जाए। दिस, ये जो हमने इतना कुछ पढ़ा, what did we learn? We learned that in India, sorry, Port Blair is its capital. It's not written. What we learned, if we look into the development of our country, अगर हम लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, तो डेफिनेटली वी नीड रिसोर्सेज, वी नीड मिनरल्स, वी नीड वाटर, वी नीड एग्रीकल्चर, वी नीड। तो हमारे यहाँ अगर हम हिमालयन माउंटेन्स को देखें, तो दे आर द अबोर्ड टू मेनी फॉरेस्ट। तो आपका फ्लोरा फौना दोनों है। इफ वी लुक इनटू द नॉर्दर्न प्लेन्स, इट कंप्राइजेस ऑफ द अलूवियम सॉइल, which means हमारे पास में पूरा ग्रेन, and India has number of vegetables, number of grains, pulses, सब कुछ हमारे यहाँ पर। In 10th standard you have a detailed one, so I'm not going to discuss it over here. You have आपका राइस बेल्ट पूरा पंजाब भी है, वेस्ट बंगाल भी है, गोदावरी बेल्ट भी है। You have the wheat belt, which is again पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया। आपका जो आशीर्वाद आटा आता है, इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस, आपका एमपी का मतलब आटा माना जाता है। यू हैव इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस भी है। प्लस वी हैव द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विच, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दीज रिलीफ फीचर्स। और हम लोग क्या सब कुछ थोड़ी वी यूज इट, वी ऑल्सो प्रोड्यूस, वी ऑल्सो सेल इट ओवर। अगर हम हिमालय का नाम क्या है, नीलगिरीज को देखते हैं, अगर हम लोग दार्जिलिंग को देखते हैं, असम को देखते हैं, तो दे आर द टी बियरिंग एरिया। अगर हम नीलगिरीज पूर्व वाला एरिया देखते हैं, तो दे आर द कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया। एंड इफ वी लुक इनटू द कोस्टल स्ट्रिप्स, वहां पर यू विल बी फाइंडिंग कोकोनट, देन स्पाइसेस। आपका पूरा केरला जो है वो स्पाइसेस के लिए बहुत। देन if we look into the plateau region, there you find all kinds of minerals, which is very important for the economic development of any country. हमारे पास सारे मिनरल्स हैं, आयरन भी है, वी हैव आयरन, वी हैव एल्यूमिनियम, वी हैव कोल, हमारे पास सारे डिपॉजिट्स हैं। What it says, a detailed account of the different physiographic unit highlights a unique feature of each region. अब आपने देखा हर जगह पे हमारे यहाँ कुछ ना कुछ है, कोई ना, हमारा माउंटेन्स है, सारे आपके रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। इंडिया हैज अ लार्ज फॉरेस्ट वेल्थ। India has number of flora and fauna. India is the only country where you find both lion and tiger. Lion आपका गिर फॉरेस्ट गुजरात, टाइगर आपका रॉयल बंगाल आपका कलकत्ता। यानी कि वी हैव बोथ, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। देन रिवर्स, रिवर सिस्टम,
The northern plains are the granaries of the country because as I have already told, यहीं पर आपके जितने भी दाल चावल सभी आते हैं. They were the base for early civilization. Civilization आपके वहीं, ये आपका assertion and reason में भी आ सकता है. This can come कि जो northern plains है, they are the granaries because they मतलब कि they provide the base for early civilization because they are rich in water, मतलब water and soil. तो सिविलाइजेशन वहीं स्टार्ट हुए थे जहां पर आपका पानी था. द प्लेटू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच आई हैव ऑलरेडी सेड. इट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज, और हमारे यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर ऑल within. The coastal provides site for fishing, port activities. इंडिया के अंदर देर आर मेनी पोर्ट्स. प्रोमिनेंट आपके 12, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात. आपका गुजरात में सबसे पहला, देन फिर मुंबई. मुंबई में आपके 2 है, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन आपका केरला, देन मूविंग टूवर्ड साउथ. साउथ में आपके 2 है, देन आपका आंध्रा विशाखापट्टनम, देन आपका उड़ीसा पाराद्वीप, एंड देन आपके अगेन कोलकाता में 2 है. So we have prominent port facilities. Thus, the diverse, और ये जो सामान होते हैं इनका आना और जाना, they are all through the port. Thus, diverse physical features of land have immense future possibilities of development. Because India is the only country where you find all of these. And if we are using it in the right manner, अगर हम इनको सही तरीके से यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वी वुड डेफिनेटली बी बेनिफिटेड. हमारे जितने भी गुजरात वाला एरिया, कितनी इंडस्ट्रीज है आपके, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपके जो सूरत का जो टेक्सटाइल वाला है वो सारे वहां पे है. एवरीथिंग इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम देयर. कांडला पोर्ट, देन आपके नॉर्थ से जो जाता है वो भी कांडला पोर्ट के थ्रू जाता है. मुंबई पोर्ट से आपका जो इंडस्ट्रीज एज वेल एज और चीजें जाती है. अगर हम लोग नेक्स्ट मारमगाओ आते हैं तो वहां से आपके आयरन जितने भी हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं. देन कर्नाटका में आते हैं, कुद्रेमुख से जितने भी आपके आयरन आते हैं वो आपका कर्नाटका से जाता है, न्यू मैंगलोर से. जो कोच्चि है इट इज फिशिंग का भी है आपका. देन इट इज ऑल्सो सर्विंग फॉर द मतलब की अदर एरियाज. देन इफ यू कम टू ट्यूटिकोरिन जो हमारा तमिलनाडु में है, वो पोर्ट आपका श्रीलंका मालदीव सबको हेल्प करता है. देन तमिलनाडु अगेन इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट. फिर पाराद्वीप, सॉरी विशाखापट्टनम, इट इज टूवर्ड्स आपके जो ईस्टर्न साइड में जितने भी हमारा जाता है शिप वहां से जाते हैं. देन पाराद्वीप अगेन आयरन फ्रॉम छोटा नागपुर प्लाटू एंड ऑल, इट इज एक्सपोर्टेड. देन आपका कलकत्ता जितने भी इंडस्ट्रियल. तो दिस वे इफ वी सी, हमारे पास पोर्ट्स हैं, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास फॉरेस्ट है. सो इफ वी सी इंडिया फिजिकल जो फीचर है, जो फिजियोग्राफिकल फीचर, दे आर वेरी प्रोमिनेंट एंड दे कैन हेल्प. तो हम लोग आगे अभी क्या पढ़ेंगे इस साल, तो आप लोग यही पढ़ोगे कि व्हाट इज द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड कि ये रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करते हैं. If you have seen, I have been telling this thing, a land mass bounded by sea on 3 sides is referred as peninsula. Mountain ranges in eastern part, जो कि आपके इस तरफ पड़ते हैं म्यांमार की तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट, पूर्वांचल. द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, गोवा के साउथ को क्या बोलते हैं, तो आपका कन्नड़. यही आपके पेपर में आया हुआ है. द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी. दीज आर सम ऑफ द वेरी नॉर्मल. देर आर नंबर ऑफ, जितने भी मैंने अभी मार्क किए हैं, all of them comes in the exam. As I have already told you, if you see the second question, the 3 major divisions of Himalaya from north to south. मतलब आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में बताना. देन नॉर्थ टू साउथ,
अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बोलते तो आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय एंड असम हिमालय। नॉर्थ टू साउथ बोल रहे हैं तो हिमाद्री, हिमाचल एंड आपका शिवालिक। Then which plateau lies between Aravalli and Vindhya? That's आपका central. Name the island group having coral origin. Lakshadweep. Distinguish between Bhangar and Khadar. I've already told this is also a board question. Western Ghats and Eastern Ghats. This has come in the 5 marks question. What are the major physiographic division? जो आपका 6 है उसका नाम लिखता है। कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन विद दैट पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि आपको हिमालयन रीजन को भी डिफाइन करना है और पेनिनसुलर प्लेटू को भी बताना है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड एंड आइलैंड ग्रुप। दीज आर द मैप क्वेश्चन वी हैव सेपरेटली, जो आपका मतलब कि सीबीएसई के साइट है उस पर भी आपके दिया हुआ है। These are all the map questions which we need to mark on the map. So this is all in the chapter Physiographical Features of India. In another word, Physical Features of India. With this, the chapter is complete along with NCERT.